Hello guys, my name is Dheeraj Kumar Gupta and today we discuss address resolution protocol and reverse address resolution protocol, जिसको हम लोग address resolution protocol that is ARP and reverse address resolution protocol that is RARP इसे हम कहते हैं. So let's start one by one. So first we start the address resolution protocol, that is ARP. So the address resolution protocol is the delivery of packet to a host or router require two level of addresses, that is logical and physical. So while we are delivering the packet, at that time we require the two types of addresses. एक address होता है that is the logical and another one is the physical. So logical address is the IP address and physical address is the MAC address or hardware address. ARP associate an IP address with the physical addresses. So when we deal with the ARP, so ARP may generally they are providing the IP address, and with the help of that IP address we map the physical address, that is the MAC address. So here the logical address is mapped with the physical address. As IP uses the service of data link layer, it needs to know the physical address of the next hop, that is the ARP. So as you know that in a data link layer we have the frames and we deal with the frames, and in the above layer, that is the layer 3, that is the network layer, and in that network layer we require the IP addresses, that is the logical address. So this is the data link layer protocol that uses the service of the physical address, and it provides the next hop, that next hop means the next level of the address, and that is the logical address. So जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग डेटा लिंक लेयर में हम लोग लॉजिकल एड्रेस पे काम करते हैं, और जो नेटवर्क लेयर होता है वहाँ पे हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है. सो ARP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम लोग जो लॉजिकल एड्रेस है उसे मैप करते हैं हमारे फिजिकल एड्रेस के साथ में. सो mapping of IP address into the MAC address, there are two types of mappings. यहाँ पे जनरली हम लोग दो टाइप की मैपिंग परफॉर्म करते हैं. So the first one is the static mapping and the second one is the dynamic mapping. Mapping of logical address to the physical address can be static or dynamic. So whatever the mapping we are using here, so वो मैपिंग लॉजिकल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है. ये डिपेंड करता है कि जो लॉजिकल मैपिंग है जब भी हम उसे फिजिकल एड्रेस के साथ में मैपिंग परफॉर्म करते हैं तो वो स्टैटिक और डायनेमिक इस तरीके की मैपिंग हम लोग यूज करते हैं. स्टैटिक मैपिंग. So first of all we discuss what do we mean by the static mapping. Static mapping involve a list of logical and physical address correspondence. Maintenance of the list requires high overhead. So generally static mapping में जो होता है ऐसा है कि इसमें इन्वॉल्व होता है कि हम लोग इसमें जो लॉजिकल एड्रेसेस है उस लॉजिकल एड्रेसेस को हम लोग फिजिकल एड्रेसेस के साथ में मैप करते हैं. बट यहाँ पे हम लोग जनरली टेबल तैयार करते हैं इन स्टैटिक मैपिंग में, और उस टेबल के अंदर में सभी एंट्रीज होती है जिसे हम लोग मेंटेन करना पड़ता है. सो ये थोड़ा सा ओवरहेड होता है स्टैटिक मैपिंग जो हमारी होती है. इन स्टैटिक मैपिंग टेबल इज क्रिएटेड विथ लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस. सो जो लॉजिकल और जो फिजिकल एड्रेसेस है उसका एक टेबल क्रिएट किया जाता है, एंड थ्रू दैट टेबल that device must know what is the logical address of a particular physical address of that device. In static mapping, if any system want physical address, we first access the table.
सो जनरली हम लोगों ने देखा है कि स्टैटिक मैपिंग में हम लोग टेबल तैयार करते हैं और अगर किसी को फिजिकल एड्रेस की ज़रूरत होती है तो वो उस टेबल को एक्सेस करता है और उस टेबल के थ्रू वो फाइंड आउट करता है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस का फिजिकल एड्रेस क्या है। इन दिस, if LAN card is replaced or changed, then it will manage in this table statically. So if any system has LAN card is changed or replaced, at that time it can be managed this table statically. So उस टेबल को statically उसे मैनेज करना होता है। अगर कोई भी LAN कार्ड को हम लोग चेंज करते हैं या उसे रिप्लेस करते हैं उस सिस्टम से, तो हमें जो टेबल है उसे स्टैटिकली हमें मेंटेन करना होता है। अदरवाइज जो भी एंट्रीज है उस टेबल की वो पुराने एंट्रीज के बेस पे वो उसे एक्सेस करता है। अदरवाइज इट एक्सेस लास्ट स्टेटस। सो जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया कि अगर वो टेबल में अगर अपने लैन कार्ड चेंज किया या रिप्लेस किया तो उसे हमें टेबल में स्टैटिकली उसे मेंटेन करना होता है। अदरवाइज जो पहले की एंट्री है उसे ही वो एक्सेस करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिक मैपिंग। नाउ वी डिस्कस द डायनेमिक मैपिंग। In dynamic mapping, each time machine know the logical address of another machine, it can use a protocol to find the physical address. So in a dynamic mapping जनरली होता ऐसा है कि ये मशीन जो रहता है हर एक द एड्रेस ऑफ द अनदर मशीन, जो एक मशीन होता है वो दूसरे मशीन का एड्रेस को नोन रखता है और ये पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ दिस ARP प्रोटोकॉल। The address resolution protocol, that is ARP, is dynamic mapping method that find a physical address given a logical address. So generally ये जो protocol है हमारा that is the ARP, that is address resolution protocol, ये dynamic mapping method को prefer करता है और इसके through ये find out करता है कि उसके पास में जो physical address की जरूरत पड़ती है वो लॉजिकल एड्रेस के थ्रू उसे मैप करके फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करता है। नाउ ARP प्रोटोकॉल। सो द ARP एक्सेप्ट अ लॉजिकल एड्रेस फ्रॉम द IP प्रोटोकॉल, मैप द एड्रेस टू द करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस एंड पास इट टू द डेटा लिंक लेयर। सो जनरली ARP प्रोटोकॉल में ये होता है कि ये एक्सेप्ट करता है आपके लॉजिकल एड्रेस को और लॉजिकल एड्रेस के थ्रू जो ये IP प्रोटोकॉल है ये मैप करता है उसके करस्पॉन्डिंग जो उसके फिजिकल एड्रेस होते हैं और उसे पास करता है डेटा लिंक लेयर पे। सो हियर यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि दिस इज दी वन होस्ट एंड दिस इज दी अनदर होस्ट। सो यहाँ पे बहुत सारे होस्ट है। अब मान लो अगर इस वाले होस्ट को आपको एक आधा यहाँ पे IP पे अगर इसको एड्रेस चाहिए तो वो क्या करेगा, तो सबसे पहले क्या करेगा ये एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ये होस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। सो ये किस तरीके से रिक्वेस्ट सेंड करता है, इस तरीके से एक रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है कि आई नीड दी 10.0.22 का जो मैक एड्रेस है वो चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट को वो ब्रॉडकास्ट करता है सभी नोड्स पे। अब जिसका भी ये नोड्स का IP एड्रेस है वो IP एड्रेस इसको चेक करता है और चेक करने के बाद वो अपना जो IP एड्रेस और उसमें साथ में उसका मैक एड्रेस को वो रिप्लाई में यूनिकास्ट के थ्रू इस सिस्टम को सेंड करता है। जब ये सिस्टम इसको ब्रॉडकास्ट करता है तो उस टाइम पे ये सिस्टम उसको उसका IP एड्रेस, खुद का मैक एड्रेस और जिसका आपको मैक एड्रेस चाहिए उसका IP एड्रेस इसके साथ में ये सभी को ब्रॉडकास्ट करता है। तो इस तरीके से ये जो ARP प्रोटोकॉल है ये वर्क करता है। सो जैसे कि इस डायग्राम पे अभी हमने देखा। नाउ वर्किंग ऑफ ARP। Imagine a device want to communicate with the other over the internet. So if a device want to communicate with the other device over the internet, so we require the ARP protocol. What ARP does, it broadcasts a packet to all the devices of the source network
सो ARP डज द ब्रॉडकास्ट। ARP क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। और ARP जब भी ब्रॉडकास्ट परफॉर्म करता है तो ARP जनरली जो भी डिवाइस है वो अपना IP एड्रेस, अपना मैक एड्रेस, और जो डिवाइस का उसे मैक एड्रेस चाहिए उसका IP एड्रेस एक साथ ब्रॉडकास्ट करता है। द डिवाइस ऑफ द नेटवर्क peel the header of the data link layer from the protocol data unit, that is PDU, called frame, and transfer the packet to the network layer, that is the layer 3 of OSI, where the network ID of the packet is validated with the destination IP's network ID of the packet। सो जनरली ये डिवाइस जो होते हैं, सो तो डिवाइस उस हीडर के थ्रू परफॉर्म करता है, और जो हीडर में जो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल होता है उसके पीडीयू के थ्रू वो पैकेट को सेंड करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। और वो जो ब्रॉडकास्ट किया हुआ जो पैकेट है उसके जो अपर लेयर होता है, दैट इज द लेयर 3 ऑफ द OSI, वहाँ से वो जो पैकेट की जो आईडीज है उसको वैलिडेट करता है, और वैलिडेट करने के बाद जो डेस्टिनेशन पैकेट होता है वहां तक वो डेटा को सेंड करता है। तो ये जो भी प्रोसेस होती है ARP, जो रिक्वेस्ट होती है वो रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट के थ्रू हम लोग परफॉर्म करते हैं। इफ इट इज इक्वल देन इट रिस्पॉन्ड टू द सोर्स विथ द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशंस। अगर उसके साथ में वो मैच होता है, जो भी उसके पास में जो पैकेट आया हुआ है, तो वो उसको मैक एड्रेस उसके डेस्टिनेशन तक सेंड करता है रिप्लाई में, और वो जो रिप्लाई होता है वो यूनिकास्ट होता है। एल्स द पैकेट रीचेस द गेटवे ऑफ द नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट पैकेट टू द डिवाइसेस इट इज कनेक्टेड विथ एंड वैलिडेट देयर नेटवर्क ID। सो जनरली वो उसको ब्रॉडकास्ट के थ्रू उसको रिसीव रिक्वेस्ट सेंड होता है, और यूनिकास्ट के थ्रू वहाँ पे उस पैकेट को मैक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है उसके IP एड्रेस के साथ में, और उसे वैलिडेट किया जाता है। The above process continue till the second last network device in the path to reach the destination, where it gets validate, and ARP in turn respond with the destination MAC address। सो जनरली जब भी रिप्लाई देता है वो जो डेस्टिनेशन जो हमारा डिवाइस होता है वो उसके IP एड्रेस के साथ में अपना मैक एड्रेस यूनिकास्ट उस डिवाइस तक प्रोवाइड करता है, उसे सेंड करता है। सो दिस इज द वर्किंग। नाउ द format of ARP packet। So this is the format of ARP packet। Here the first is the hardware type, second one is the protocol type, hardware length, then protocol length, and operation। In operation we have two types, that is the request and reply। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि जो रिक्वेस्ट होता है वो ब्रॉडकास्ट होता है, और जो रिप्लाई होता है वो यूनिकास्ट होता है। नेक्स्ट वन इज द सेंडर हार्डवेयर एड्रेस, दैट इज द 32 बिट का रहता है। उसके बाद में सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस, ये भी 32 बिट का है। टारगेट हार्डवेयर एड्रेस एंड टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इस तरीके का ये जो फॉर्मेट है, ये है पैकेट फॉर्मेट है, ये ARP का पैकेट फॉर्मेट है। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। So the first one is the hardware type। So the hardware type, it defines the type of the network, that is the 16 bit। ये 16 bit का है, फर्स्ट रीडर फॉर्मेट है, that is the hardware type। अगर ये इथरनेट होता है तो इसे हम लोग टाइप 1 कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्रोटोकॉल टाइप, इट इज ऑल्सो 16 bit, and the value of this field for the IPv4 protocol, that is the 0800 base 16। सो ये जो होता है दैट इज ऑल्सो 16 बीट का ये हीडर फील्ड होता है, दैट इज द प्रोटोकॉल टाइप।
नाउ नेक्स्ट वन इज द हीडर लेंथ, दैट इज द हार्डवेयर लेंथ। ये 8 बीट का होता है और ये डिफाइन द लेंथ ऑफ द फिजिकल एड्रेस इन बाइट्स। सो जनरली जो फिजिकल एड्रेस होता है उसकी जो लेंथ है वो डिफाइन करने का काम ये हीडर लेंथ करता है। फॉर इथरनेट द वैल्यू इज 6, क्योंकि ये 6 के पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसका जो हार्डवेयर का जो लेंथ होता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है, और उसे हम लोग 6 बाइट्स में उसको डिवाइड करते हैं, करके ये 6 बाइट यहाँ पे इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन इज द प्रोटोकॉल लेंथ, इट इज 8 बीट्स। डिफाइन द लेंथ ऑफ द लॉजिकल एड्रेस इन बाइट्स। सो 8 ये 32 बीट का होता है IPv4। जनरली हम लोग यहाँ पे IP4 देख रहे हैं। सो यहाँ पे जो होगा दैट इज फॉर द IPv4 द वैल्यू इज 4, तो यहाँ पे 4 बाइट्स यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट वन इज द ऑपरेशन, इट इज 16 बीट्स एंड डिफाइंड द टाइप ऑफ द पैकेट्स। तो जनरली हमने देखा है कि जो ARPS में 2 टाइप के पैकेट्स होते हैं। एक होता है ARP रिक्वेस्ट, जिसे हम लोग 1 से इंडिकेट करते हैं, और सेकंड होता है ARP रिप्लाई, जिसे हम लोग 0 से इंडिकेट करते हैं। सो वी ऑलरेडी डिस्कस दिस। नेक्स्ट वन इज द सेंडर हार्डवेयर एड्रेस। वेरिएबल लेंथ फील्ड डिफाइंड द फिजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर। सो यहाँ पे जनरली जो भी सेंडर रिक्वेस्ट सेंड करता है उसके हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन इस फील्ड में होती है। Next one is the sender protocol address. So the variable length field defined the logical address of the sender, means logical address means the IP address of the sender. For the IP protocol the field is 4 byte long. So IP address है इसलिए ये 32 बीट का होता है, करके ये 4 बिट लॉन्ग होता है, और ये फील्ड जो है वो सेंडर के IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। Next one is the target hardware address. Variable length field defined the physical address of the target. जिस सिस्टम का हमें हार्डवेयर एड्रेस चाहिए वो यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। Next one is the target protocol address. Variable length field defined the logical address of the target. So these are the field of the ARP packet format. Now encapsulation of ARP packet. So generally यहाँ पे encapsulated directly into the data link layer. ARP packet encapsulated in an Ethernet frame. So generally in this diagram we are dealing with the data link layer. This is the data link layer and this is the structure of the frame. So in this frame, preamble, destination, MAC address, so the source MAC address, type, data and CRC, that is the cyclic redundancy check, and this is the encapsulated the above layer, that is the network layer, and here the ARP request or reply packet. So this is the encapsulation of the ARP packet. Now we discuss the reverse address resolution protocol, that is the RARP. So here the reverse means it is the opposite of the ARP. It performs the reverse operation of the ARP. So reverse address resolution protocol, that is the RARP, is a form of dynamic mapping in which a given physical address is associated with a logical address. So जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग ARP में हम लोग लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, उसे मैप करते हैं और हमें फिजिकल एड्रेस मिलता है। यहाँ पे हम लोग फिजिकल एड्रेस को मैप करेंगे, उससे हमें लॉजिकल एड्रेस मिलेंगे। RARP maps a physical address to a logical address. So generally रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में हम लोग फिजिकल एड्रेस को मैप करते हैं लॉजिकल एड्रेस के साथ में। सो यहाँ पे दिस इज माय फिजिकल एड्रेस, इट इज मैप विद द लॉजिकल एड्रेस एंड वी विल गेट द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द डिवाइस। सो द ऑपरेशन ऑफ RARP, so here
in this there is a RARP server, and when we require the IP address of a particular node, then its server is reply. So the first host is require the IP address, so it perform the request to all the nodes, and particular that nodes which have require the IP address. So RARP ऑपरेशन में जनरली जिस नोड को IP एड्रेस की ज़रूरत होती है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, और वो रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट के फॉर्मेट में होती है, और उसके बाद वहीं पे एक सर्वर होता है जो उसे रिप्लाई करता है, दैट इज़ द RARP सर्वर, जो उसके IP एड्रेस, उस सिस्टम के IP एड्रेस को रिप्लाई करता है उस होस्ट पे। सो यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है इस डायग्राम में, माई फिजिकल एड्रेस इज दिस एंड आई एम लुकिंग फॉर द IP एड्रेस। सो ये जब रिक्वेस्ट सेंड करता है तो ये सर्वर RARP सर्वर इसे एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद वो उसे रिप्लाई करता है एक IP के साथ में। सो इस तरीके से जो ऑपरेशन होता है दैट इज द RARP वो परफॉर्म किया जाता है। नाउ वी डिस्कस हाउ डज द RARP वर्क। सो हु नोज द IP एड्रेसेस ऑफ अ नेटवर्क participant? If they do not know it themselves, a special RARP server does. So generally उस नेटवर्क में अगर किसी को IP एड्रेस पता नहीं है तो वो किसी को पता नहीं होता है, और वो जो IP एड्रेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं थ्रू अ स्पेशल ARP सर्वर के थ्रू हम लोग उसे प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो RARP जो सर्वर है ये एड्रेस को प्रोवाइड करता है, इसे हम लोग ARP सर्वर हम लोग कहते हैं। दिस सर्वर which respond to RARP request can also be a normal computer in the network. However, it must have stored all MAC addresses with their assigned IP addresses. So generally ये जो भी एक सर्वर होता है जिसे हम लोगों ने ARP सर्वर के नाम से हम लोगों ने बताया हुआ है, this is also a normal machine and which store all the physical addresses and the logical address of the system, और वो उसी के थ्रू वो उसे जब भी कोई लॉजिकल एड्रेस की ज़रूरत होती है RARP होस्ट को तो वो IP एड्रेस उसे प्रोवाइड करते हैं। If a network participant send an RARP request to the network, only these special server can respond to it. So उस नेटवर्क में अगर कोई भी सिस्टम जो भी है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है एंड दैट रिक्वेस्ट इज द RARP, सो जो वो स्पेशल टाइप के जो सर्वर होते हैं वही उसे रिप्लेस मतलब उसी को रिप्लाई करते हैं, बाकी कोई उसे रिप्लाई नहीं करता है। सिंस द requesting participant does not know their IP address, the data packets, that is the request, must be sent on the lowest layer of the network as a broadcast. So generally we know that whenever the request is sent a particular host, that is in the form of the broadcast, it broadcasts to all the host, सभी होस्ट को ये ब्रॉडकास्ट करता है और उसमें से जो RARP सर्वर है वही उसको रिप्लाई करता है। दिस मीन्स दैट द पैकेट इज सेंड टू ऑल पार्टिसिपेंट एट द सेम टाइम, हाउएवर ओनली द RARP सर्वर विल रिस्पॉन्ड। सो जैसे कि हमने देखा कि ये जो भी पैकेट होते हैं ये एक साथ सभी पार्टिसिपेंट को सेंड किया जाता है वो जो रिक्वेस्ट होता है, और उसमें से सिर्फ जो RARP जो सर्वर है वही उसको रिस्पॉन्ड करता है। इफ देयर आर सेवरल ऑफ दीज सर्वर्स, द रिक्वेस्टिंग पार्टिसिपेंट विल ओनली यूज द रिस्पॉन्स दैट इज फर्स्ट रिसीव्ड। सो जनरली यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि अगर कई सारे रिक्वेस्ट एक साथ उसके आते हैं RARP सर्वर को,
तो वो जो फर्स्ट रिक्वेस्ट आया है उसे कंसीडर करके उसे रिप्लाई करता है पहले, फिर बाद में अलग अलग को। तो इस तरीके से वो एक एक को रिप्लाई करते जाता है और आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते जाता है। द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फॉर्मेट हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द ARP। सो जैसे कि हम लोगों ने ARP में जो स्ट्रक्चर देखा था जिसमें कि रिक्वेस्ट और जो रिप्लाई होता है, वो सेम स्ट्रक्चर ये भी परफॉर्म करता है हमारा RARP सर्वर। नाउ RARP पैकेट फॉर्मेट, ये पैकेट फॉर्मेट सेम है जैसे कि हम लोगों ने ARP के लिए देखा था, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे हमें जो रिक्वेस्ट आता था, जहाँ से हमें जो सोर्स मशीन है, जो हमारी सोर्स मशीन है, दैट इज दी, जहाँ से हम लोग वो पैकेट को सेंड करते हैं, रिक्वेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ से हम लोग पहले फिजिकल एड्रेस, हम लोग पहले और लॉजिकल एड्रेस प्रोवाइड करते थे, जिसके थ्रू हमें मैक एड्रेस, दैट इज द फिजिकल एड्रेस मिलता था हमारे ARP के फॉर्मेट में। यहाँ पे हम लोग फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड करेंगे और जिससे हमें लॉजिकल एड्रेस मिलेगा। सो जो पैकेट फॉर्मेट है वो सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे जो सेंडर मशीन है वो यहाँ पे जो हमें फिजिकल एड्रेस और प्रोवाइड करती है सेंडर मशीन का, और उसका लॉजिकल एड्रेस, जिसके भी मशीन का आपको IP एड्रेस चाहिए तो वहाँ से हमें IP एड्रेस मिलता है। तो ये सिर्फ एक फ़र्क होता है, बाकी इसका जो पैकेट फॉर्मेट होता है वो सेम होता है ARP की तरह। फील्ड भी सेम होते हैं। Now the encapsulation of RARP packet. So again the same function is performed. यहाँ पे जनरली हम लोग इनकैप्सुलेट करते हैं इसे डेटा लिंक लेयर में, और ये जो अपर लेयर होती है दैट इज द नेटवर्क लेयर, वहाँ से ये रिक्वेस्ट और रिप्लाई पैकेट को इनकैप्सुलेट किया जाता है इस डेटा फील्ड में, यहाँ के जो हमारे पास में डेटा लिंक लेयर के अंदर में जो फ्रेम होता है उसमें। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ARP and RARP, that is the address resolution protocol and reverse address resolution protocol। so इस तरीके से जो हमारे एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है और जो रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है ये काम करते हैं। एड्रेस रिजोल्यूशन जो प्रोटोकॉल है वो आपको लॉजिकल एड्रेस को हम लोग मैप करते हैं और विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल एड्रेस, और RARP में हम लोग जनरली जो हमारा फिजिकल एड्रेस होता है उसे मैप करते हैं हमारे लॉजिकल एड्रेस के साथ में। सो इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया कि ARP और RARP प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं। सो आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होंगी। इन केस यू हैव एनी डाउट देन you will write on the comment section. I will definitely reply you. Okay, bye bye.